Very good afternoon, dear students. Today our topic is very important one. That is, the name of the topic is citrus. Citrus. But you have to remember that you have not to see towards the slide. Whatever I will say with my tongue and whatever I will write, you have to see that. Because the slide is not prepared, it is photograph of a book. Now, first of all, what is citrus? Citrus, you have to remember, it deals with the phonetics. I have already told you that phonetics means, phone means sound. Phonetics is that which deals with the sound, yes, or pronunciation, or as I have told you that whatever we speak, there we use the sounds. I have told you already this, that there are 44 sounds, isn't it? Yes, and whatever we write, there we use letters of alphabet. I told you, it is known to you that there are 26 letters of alphabet. They are known to you. But in case of speaking, what we do, when we speak, when we make the voice, when we make the sound, we produce some sounds loud. We produce some sounds. Is it clear to you? For example, I will say in Kashmiri. For example, when the girls or the women, they sing the song, they were so kya goi ki nahi. Yes, sir. See nahi, right, both ki nahi. I have narrated this, but I have given more citrus upon ki nahi. Citrus means, in short, loudness. For example, when you watch a movie, there you see that some sounds you listen very clearly. They speak some sounds very fast. Can you got me? Is it clear to you? That is in short. In short, I will say that to speak some sounds louder. To speak some sounds louder is called citrus. Clear? Clear? That means, for example, I will give you a very good example. With the help of that example, you will understand. With the help of that example. But once again, one should always, you are educated students, education is different, literacy is different. Literate means one who knows writing, reading and speaking. That is called literate. Educated means that whose behavior is like the human. As our Prophet ﷺ, he was illiterate, isn't it? But he was educated. We are literate, but not educated. Is it clear to you? Educated, I mean that one should have the human qualities. And one should, what I mean by human qualities, one should have a broad mind. Not like us, narrow mind. If we will see two persons, boy and girl outside, then maybe we have our sisters, we have our brothers. It is our narrow mindedness. This narrow mindedness should not be. And we, in case of this Islam, the most formidable thing is to say something which is not clear. यानी we can't say anything which is not clear. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दी, अगर हम भाई देखें, कोई लड़का लड़की, हम कहेंगे वो बहन भाई भी हो सकता है, हम भी होते हैं. मतलब हमारा ब्रॉड माइंड होना चाहिए, ऐसे नेगेटिव नहीं है. नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. ये अपना सोच होता है. जो खुद खराब होता है उसको सभी खराब भी नजर आते हैं. जो खुद अच्छा होगा उसको अच्छा ही आता है. हाँ, मुझे और कुछ कहना है, इसलिए मैंने ये कहा है. यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि नजरिया अच्छा होना चाहिए. ये अपने मतलब दिमाग में ये याद रखना है आपको. यानी कि मुझे और कुछ एक्चुअली कहना था. एक सेंटेंस से आपको मुझे एक्सप्लेन करना था. आप में वो सेंटेंस लिखता भी नहीं, पहले मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा था. मिसाल के लिए मैंने इसीलिए पहले ये कहा है. अभी आप कहेंगे ओ इसे सामने लाव लिखा है.
We love our parents, we love God, we love prophet, we love our children, we love our daughters, we love our sons. इसमें क्या है? Is it clear to you? आप में ज्यादातर आप वर्ड लव लिखता ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ क्या मालूम है, फिर हालात खराब होंगे, इसको क्या हो, ये तो गंजा है, फिर ये ऐसा कह रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वन शुड बी ब्रॉड माइंडेड। आपने क्या करा हो, मैं आप ऐसे लिख रहा हूं, आई लाइक यू, आई लाइक यू, क्योंकि मतलब आप स्टूडेंट्स को भी लगेगा लाइक तो अलग है, क्योंकि ये मतलब हमारे दिमाग तो क्या करेंगे, समझ आ रहा है? मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये मतलब इंसान को ब्रॉड माइंड, आपको एक चीज याद रखना है, जो आप अपने आंखों से देखते हो ना, अपने आंखों से, जो मैंने भी कहा लड़का और लड़की, हम तो अपने आंखों से देखते हैं। कहते हैं कि जो आप कानों से सुनेंगे आपको कहेगा कोई कि उसने आपके खिलाफ कितना कहा है, ऐसा कहा है, वैसे कहा है, कहते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं, गैबत कहते हैं, गैबत, बैक बाइटिंग। यानी कि अगर वो कहेंगे उस पर यकीन नहीं करना है, ये यकीन नहीं करना है। और आपको मालूम है सबसे गुनाह बैक बाइटिंग है। इतना गुनाह है कि कहते हैं कि जो किसी का मरा हुआ भाई होगा, मरा हुआ भाई, उसका गोश्त खाना, कौन खाएगा अपने मरा हुआ भाई का गोश्त? इतना गुनाह है ये। और बैक बाइटिंग क्या है? किसी दिन हुज़ूर के पास कोई था, मुझे याद नहीं है, शायद हजरत ऐशा ही था, पूरा मुझे याद नहीं है। उसने कहा कोई आदमी छोटा है कद से, उसने कहा ये गुनाह है, ये मत कहो, ये बैक बाइटिंग है। आप कहो हम कितनी बैक बाइटिंग करते हैं, समझ आ रहा है? यानी कि मेरे कहने का मतलब व्हाट यू हियर डोंट बिलीव अपॉन दैट, व्हाट यू सी बिलीव हाफ अपॉन दैट। जो आपको मैंने भी कहा है, हम देखते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? खाक, वो तो बहन भाई है। मेरे कहने का मतलब यही है, अब मैं आई लाइक यू लिखूंगा, हाँ, अपने आपको बचाने के लिए, हाँ ठीक है, हाँ। यानी कि अब मुझे और कुछ कहना है, देखो क्या करना है। सिट्रस, सिट्रस में दिखाऊंगा आपको। हम जो सिट्रस यहां स्पीकिंग में हम कहते हैं, अभी मैंने कहा लाउडनेस, इन शॉर्ट, मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, मैं ज्यादा डेफिनेशन पर नहीं आ रहा हूं, वरना तो यहां लिखा हुआ है एन इंग्लिश वर्ड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सिलेबल। ये मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा, पहले मैं सिट्रस पर ही आऊंगा, हाउ टू मेक ए सिट्रस। हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब इन शॉर्ट है लाउडनेस, लाउडनेस ऑफ द साउंड। मगर आप कहेंगे जो हमें मर्जी होगी वहां हम लाउड कहेंगे, नहीं, ये किसी एक साउंड पर जोर देना होता है। किस पर ज्यादातर अगर हम देखेंगे, अगर हमें पैराग्राफ में देखना है किसी मतलब इंपॉर्टेंट पर, मिसाल के लिए मैं कहूंगा आपको, हैव यू अंडरस्टूड, इज इट क्लियर टू यू। मैं ऐसे भी कहूंगा क्लियर, मतलब क्लियर पर मुझे सिट्रस देना है। मेरा मेन वर्ड जो है वह क्लियर, अंडरस्टूड, ये मेन वर्ड है। यानी कि जिस पर मतलब आपको फिर खुद ही समझ, अगर मैं कहूंगा जैसे आपको, आपने वो सुना मत होगा, अब तो क्या करेंगे, मैंने कहा ना आपको पहले ही, आप तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। किसी कोई था, वो किसी खिड़की से कह रहा था कश्मीरी में, क्रॉस मार आमद, मगर वो लाउडली कह रहा था, है किसी को वो, है? मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब जो वर्ड सिट्रस था, जो उसको कहना था, जो नियम था, वो नहीं कह रहा था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। समझ आ रहा है? मेरे कहने का मतलब है सिट्रस वो है जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, जो मेन वर्ड होगा। मैं आपको कहूंगा आओ, क्या अगर मैं आपको ऐसे कहूंगा समझ, आपको खुद ही समझ में आएगा इसका कहने का मतलब क्या है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, यानी कि मिसाल के लिए आप, मैं कहूंगा ऐसे, यहां मतलब स्पीकिंग में मैंने आपको कहा है हम लाउड कहते हैं, वो आप लिखने में लाउड कैसे कहेंगे? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? लिखने में क्या हम करते हैं, हम जो वर्ड, जिस वर्ड पर हम सिट्रस देते हैं वहां हम ऐसे ऐसे रखते हैं। यानी कि यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां मैंने जो ये आई है उसी पर सिट्रस दिया है। यानी कि आप मैं क्या कहूंगा, आई लाइक यू, आई लाइक यू। मैंने क्या किया, आई को क्या मैंने किया, लाउडली। अब यहां मैं लाउडली दिखा मत सकूंगा, अब मैंने यहां क्या किया है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ,
यानी कि ये 1 है। और सेकंड है मिसाल के लिए आई लाइक यू, आप मैंने किस पर दिया है, समझ आ रहा है, आई लाइक यू, समझ आ रहा है। अब आप कहेंगे सर क्या आपने यहां भी किया, वहां भी किया, वहां भी किया, मगर उससे उसका माने ही चेंज होता है। अभी आपको मालूम होगा कि कितना माने, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, आप कभी कभी एग्जाम में आपने देखा होगा इंग्लिश में खासकर कम मार्क्स आपको मिलते हैं, फिर आप कहें सर मैंने तो मैंने गोटा याद किया था या मैंने नकल किया था एमबीडी गाइड से, मुझे याद है मैंने सब कुछ वहां से लिखा है। हाँ आपने लिखा है, मगर थोड़ा वहां जब आप नकल करते हैं तो वहां थोड़ा कांपते भी हो आप, है ना, तो थोड़ा आप पूरा नहीं लिखते हैं। मैं भी दिखाऊंगा कि यानी कि मिसाल के लिए जिसको हम पंक्चुएशन कहते हैं, पंक्चुएशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, जिसको हम वो कामा फुल स्टॉप, उसकी आप मतलब फिर आपको समझ में आएगा। मिसाल के लिए हम क्या करते हैं पंक्चुएशन में, अगर मैं ऐसे लिखूंगा स्टैंड अप, स्टैंड, डोंट सिट डाउन, डोंट, अगर मैं अब यही सेंटेंस लिखूंगा ऐसे, आप देखो माने कैसे चेंज होता है। स्टैंड अप डोंट सिट डाउन, आपको लग रहा है मानी में फर्क है क्या? हाँ? यानी कि स्टैंड अप, डोंट सिट डाउन, यानी कि आपको ऐसे ही रहना है, आपको ऐसे ही रहना है, यानी कि खड़ा। अगर मैं आप ऐसे कहूंगा स्टैंड अप डोंट, इसका मतलब क्या है, उठो मत, आपको किसी का उठने के लिए, सिट डाउन, बैठो। मैंने कोई वर्ड ऐड किया है, कुछ कहा है इसके मतलब जो यहां वर्ड से, फिर क्या किया है, कामा को यहां से मैंने हटाया है और यहां पर मैंने यहां इस्तेमाल किया है, अब यहां इस्तेमाल किया है, तो माने खाली चेंज नहीं हुआ है, अपोजिट माने। अगर आप अब नकल करेंगे कामा यहां से वहां, उसका माने क्या होगा, समझ आ रहा है, पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है। इसी तरह मेरे कहने का मतलब यह है, इसी तरह जो ये सिट्रस है, उस सिट्रस की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ये मेन वर्ड को प्रोमिनेंट करना, उसको लाउड कहना, यह मतलब ऐसे ही हम नहीं करते हैं, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। समझ आ रहा है। जैसे मैंने आपको अभी कहा है आई लाइक यू, जब मैं ऐसे कहूंगा आई लाइक यू, उसका माने है, समझो अब मैंने कहा है कि आप मैं लाभ नहीं कहूंगा, है ना, आई लाइक यू, उसका माने ओनली आई लाइक यू एंड नोबडी एल्स। मैं कहूंगा बेटो आपको क्या हुआ, जो बाकी सर है ना वो आपको कहते क्या मत दो क्लास, कोई बात नहीं है, मिसाल के लिए हाँ आपको लग रहा है कि सर वो कितने अच्छे हैं, देखो वो हमें कितनी क्लास देना जरूरी नहीं है, हाँ, मगर उसका मायने ये नहीं है कि वो अच्छे हैं, जो आपको क्लास देने के लिए कहेंगे वही अच्छे हैं। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है बस खाली मैं ही हूं या और कोई जिसको आप पसंद है, आप मैं ऐसे ही कहूंगा, है समझ आ रहा है, यानी कि इसका माने है ओनली आई एंड नोबडी एल्स। समझ आ रहा है यहां? अगर मैं आप ऐसे लिखूंगा आई लाइक यू, अब मैंने लाइक पर किया आई लाइक यू। अब मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने एग्जाम लिया है ऑनलाइन, बहुत सारे का आप मैंने ऑफलाइन लिया है, जो उनका ऑफलाइन हो सर आपने हमें ऑफलाइन लिया है, आपको हमने क्या किया है ना सर, क्यों हमने क्या किया है आपको? मैं कहूँ अबे आपको हमसे क्या नफरत है, जिसका आप कश्मीरी के मैं कहते हैं क्या हमने आपकी वो बेडसूट की है।